Have you wondered why Gandhiji is on the Indian currency notes and not anybody else? Some wanted Ambedkar, some wanted Goddess Lakshmi, some wanted Shivaji, Rabindranath Tagore, APJ Abdul Kalam. Some even filed a case in Kolkata High Court to replace Gandhi with Subhash Chandra Bose. To solve this never-ending debate, RBI formed a committee and decided that no other personality could better represent the spirit of India. Did you know that the Somnath temple has been destroyed and rebuilt multiple times? The first temple was built by Lord Somnath himself, but it was destroyed and rebuilt 7 times over the centuries. The current temple was built in 1951 by Sardar Vallabhbhai Patel, the first Deputy Prime Minister. After gaining independence in 1947, unifying the country was a daunting task. Sardar Vallabhbhai Patel worked tirelessly, traveling the length and breadth of the country, meeting with local leaders, and convincing them to join the Indian Union. Through his efforts, Patel succeeded in unifying India, creating a strong and united nation. Thanks to Sardar Vallabhbhai Patel's tireless efforts, India stands today as a unified and prosperous nation. ఓడిపోతామనే భయంతో ఆటలో దిగితే ఎప్పటికీ గెలవలేం. கண்டிப்பாக மோடி அவர்கள் பிஎம் அவரை பற்றின விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு அவரை நிறைய பேர் கலாய்க்கிறாங்க. ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் குஜராத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டிவிக்கிற ஒரு பையன் ஒரு இந்தியா உலகத்திலே மிகப்பெரிய டெமோக்ரஸியோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்கிறது நம்மளால் கலாய்க்க மட்டும்தான் முடியும். அதை தாண்டி நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. அது எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு யோசிச்சு பாருங்க. உலகத்திலே மிகப்பெரிய டெமோக்ரஸியோட பிரைம் மினிஸ்டராக ஒரு வித்துட்டு இருந்த பையன் ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து எந்த பேக்கப்புமே இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் வந்திருக்கிறது ஒரு அமேசிங்கான ஒரு விஷயம். அது யார் important is Surat to Indian economy? Surat, also known as Suryanagar, is the second largest city in the state of Gujarat and the 9th largest urban agglomeration in India with a population of almost 7 million. It has the highest per capita income in Gujarat with a GDP of $60 billion and a growth rate of 9.2%. Surat is one of the largest commercial and economic center in western India. Here are some interesting details that make Surat special and you must know. Dhanda, meaning business, is a term often used in common trade parlance in India. But there is no other community that fully embodies what the term stands for than the Gujaratis. Gujaratis are to be found running businesses from corner shops to hotels, from tech startups to some of the world's largest conglomerates. Consider the United States. Having arrived in numbers from the 1960s onward, Gujaratis now run about 1/3 of all its hotels and motels. This was achieved mostly by just one group, essentially an extended family, the Patels, who hail originally from a string of villages between the industrial cities of Baroda and Surat. Around the globe, they have come to wield huge influence in the diamond business. An impressive 90% of the world's rough diamonds are cut and polished in the Gujarati city of Surat. Unsurprisingly, given their success abroad, they have been at the forefront of India's own recent economic surge. Two of the wealthiest Indian business people, Mukesh Ambani and Gautam Adani, are Gujaratis, as well as Azim Premji, a global IT leader and the world's greatest philanthropist. Let's not forget Dilip Sanghvi, the Indian billionaire businessman who founded Sun Pharmaceuticals. He is also a Gujarati.
Reliance, one of India's largest private conglomerates, is Gujarati owned. The industrial centers of Ahmedabad and Surat dominate India's synthetic textile sector. One of the world's biggest denim factories is in Ahmedabad, which is also home to some of India's pharmaceutical giants. As there were gaps in the market in the past, there will be more in the future, and you can be rest assured that Gujaratis will be there to fill them. आज के इस वीडियो में हम गुजराती कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। स्पेशली गुजराती पटेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। अगर आप एक इंडियन हो तो आप ये बात एकदम अच्छे से जानते होंगे कि गुजराती पटेल्स बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। ज्यादातर गुजराती पटेल्स का खुद का बिजनेस होता है और उनके बिजनेस करने का तरीका भी टोटली अलग होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पटेल बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। किस तरह गुजराती पटेल्स लोग बिजनेस करते हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे उनके बिजनेस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम भी उनकी तरह अमीर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम सब ये बात एकदम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है एंड सरप्राइजिंगली अमेरिका की 1% पॉपुलेशन बिलोंग करती है इंडियंस को और उस 1% पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो सदर्न इंडिया के गुजराती पटेल्स है। पटेल्स को पटीदार्स भी कहा जाता है, मतलब के जमींदार। बात 1970 की है जब कुछ पटेल्स इंडिया से यूएस शिफ्ट हो गए थे, वो भी उस टाइम जब यूएसए में बहुत ही बड़ा रिसेशन चल रहा था। अमेरिका में एक बहुत ही फेमस बिजनेस होता है मोटर्स का, जो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम रिसेशन की वजह से बहुत ही बुरी तरह अफेक्टेड हो चुका था। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि मोटर्स बेसिकली रोड साइड होटल्स को बोलते हैं, जहां लॉजिंग और पार्किंग की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होती है। अब हर एक गुजराती पटेल्स की एक खासियत होती है कि वो कोई भी बिजनेस करते वक्त उस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कोई भी एक्शंस लेते। पटेल्स को मोटल का बिजनेस चलाना एकदम अच्छे से आता था और वो ये बात एकदम अच्छे से जानते थे कि यूएस के मोटल बिजनेस के लो डाउन होने का रीजन है ये रिसेशन, जो कि टेम्पररी है। क्योंकि एक बार ये रिसेशन खत्म हुआ और एक बार यूएस की इकोनॉमी फिर से स्टेबल होने लगी तो ये मोटल बिजनेस फिर से तेजी से ग्रो होने लगेगा। इसलिए पटेल्स ने यूएस मोटर्स खरीदने का डिसीजन लिया, जो उस टाइम रिसेशन की वजह से बहुत ही सस्ते दाम में बेचे जा रहे थे। इस बिजनेस डील में उन्होंने अपने बहुत ही कम पैसों को इन्वेस्ट किया था और ज्यादातर पैसे उन्होंने बैंक से लोन लिए थे। अब उनका मॉडल्स को लेके फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस एकदम सही निकला। रिसेशन के खत्म होते ही मॉडल बिजनेस ग्रो होने लगा और वो उस बिजनेस से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। पटेल ने मॉडल्स के थ्रू एक लो रिस्क बिजनेस टाइप डील की थी, जिसमें एक्चुअली में उनका बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्ट था और इस लो रिस्क बिजनेस डील में उन्हें बहुत ही बड़ा और अच्छा खासा रिटेनेबल प्रॉफिट मिला। इतना ज्यादा प्रॉफिट कि आज के टाइम पे पटेल अमेरिका के मोर देन 50% मॉडल्स को हैंडल करते हैं। इसलिए पटेल बिजनेस फॉर्मूला कहता है कि हमेशा ऐसे टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसमें रिस्क कम हो लेकिन प्रॉफिटेबल रिटर्न बहुत ही ज्यादा हो। इसलिए अगर आप भी पटेल्स की तरह लो रिस्क हाई रिटर्न टाइप बिजनेस करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको बेसिकली 3 स्टेप को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्ट ऑन अट्रैक्टिव परचेस वैल्यू। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है, वो कहते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अमीर बनना चाहते हो तो जब लोग लालच किया करते हैं तो उस टाइम आपको डरना चाहिए, लेकिन जब लोग डर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको एक्चुअली में लालची बनना चाहिए। पटेल ने मॉडल बिजनेस में इन्वेस्ट करना तब शुरू किया जब मॉडल बिजनेस एकदम लो डाउन हो चुका था और कोई भी इन्वेस्टर मॉडल में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था। अब इसकी वजह से मॉडल बिजनेस बहुत ही कम और अट्रैक्टिव प्राइस में बेचे जा रहे थे। इस अपॉर्चुनिटी को पटेल्स ने जाने नहीं दिया और फौरन अपने पैसों को उसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो ये बात एकदम अच्छे से जानते थे कि मॉडल बिजनेस का यू डाउन होना टेम्पररी है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट में मॉडल बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देगा। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो तब इन्वेस्टमेंट किया करो जब कोई एकदम अच्छा खासा बिजनेस टेम्पररी लो हो चुका हो, जब कोई भी इन्वेस्टर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हो, सो दैट आप उस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर कम और अट्रैक्टिव प्राइस में खरीद सको। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट इन ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है उसके कॉम्पिटिटर्स पर और साथ ही साथ उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पर। अगर मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है
तो श्योरली आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर मार्केट में आपके बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है एंड एट द सेम टाइम आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे और आपका वो बिजनेस बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। यूएस में बेसिकली बहुत से मोटल्स और होटल्स थे, लेकिन ज्यादातर कस्टमर पटेल्स के मोटल्स में जाना पसंद करते थे क्योंकि पटेल्स उन्हें लो प्राइस में एकदम अच्छी रूम सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो उनका एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। और इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से आज पटेल यूएस में मोर देन 50% मोटल बिजनेस को संभालते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत ही ज्यादा हो, सो डेट कल अगर मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, हैव पेशेंस एंड देन बेट। अगर आप पहले 2 स्टेप्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहली 2 कंडीशंस बार बार पैदा नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होती है जिसे आपको लूज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा लो अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यू और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसी कंडीशन का वेट करो और जैसे ही वो कंडीशन आए फौरन अपने पैसों को उसमें इन्वेस्ट कर दो। एग्जाम्पल, यूएस में हुए 9/11 अटैक के बाद मॉटल का बिजनेस फिर से लो डाउन हो चुका था, जो पटेल्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लगा। इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और ज्यादा बेट लगा के अपने पैसों को उन मॉटल्स में इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए हैव पेशेंस एंड देन बेट। सो टू कंक्लूड, ये बातें मैंने आपको द धंधो इन्वेस्टर बुक से बताया।